So in the previous class we have discussed some important results. Again just I recap those results. So जिन results को हमने discuss किया था previous class में, those are A into adjoint of A. We have started with this. That will be equals to adjoint of A into A and is equals to determinant of A into a unit matrix. And unit matrix of the same order as of matrix A. Based on this we have discussed that A inverse is nothing but adjoint of A divided by determinant of A. जब हम इनवर्स की बात कहते हैं तो इनवर्स के लिए हमने कहा था कि if A is a square matrix and if AB is coming as I, or A is a square matrix and B is also a square matrix of the same order, and if BA is also coming as AB is equals to BA which is equals to I, in that case we are going to conclude that B is nothing but A inverse of that. Then using the result, determinant of AB, matrix AB is nothing but is equals to determinant of A into determinant of B. Based on that we have solved many derivations. In fact, adjoint of A and its determinant is nothing but determinant of A raised to power n minus 1. इसी में it holds for any square matrix, तो अगर ये A के लिए hold करता है तो adjoint of A के लिए भी hold करता है. So we have written adjoint of A, that will be equals to determinant of A raised to power n minus 1 whole square. Then adjoint of A, that will be equals to determinant of A raised to power n minus 2 into A. सारे डेरिवेशंस के साथ में हमने देखा था. So when we discuss about the inverse, an inverse of inverse, that is nothing but the same matrix A inverse and its inverse is nothing but A. AB inverse is nothing but B inverse A inverse. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. So AB inverse is B inverse A inverse as well as adjoint of AB, which is equals to adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of AB is nothing but adjoint of B into adjoint of A, right? And then we were discussing about the result, adjoint of A transpose. So adjoint of A transpose is nothing but adjoint of A and its transpose of that. ठीक है ना. और ये सारे रिजल्ट्स के लिए डेरिवेशन के लिए वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ AB ट्रांसपोज, that is nothing but B transpose A transpose. At the same time, some scalar value multiplied with a matrix A, and if I take the transpose of that, that will be K times A transpose. इन रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था एज वेल एज डिराइव किया था हमने. ठीक है ना. So we have discussed AB matrix and its determinant is equals to multiplication of the two matrices, determinant of two matrices A as well as B, है ना. And based on that we have discussed, and again I am telling you that A inverse is equals to a unit matrix. जरूर होता है A into A inverse is a unit matrix, और ये रिजल्ट बहुत हेल्प करेगा आपको. So if I take the determinant both sides, जरूर ले सकते हैं A into A inverse and its determinant, that will be equals to determinant of a unit matrix, and using the previous result it can also be written as determinant of A into determinant of A inverse, and यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1. और यहाँ से हम कह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो ज़रूर आप नोटिस करिएगा और मार्क करके रखिएगा. A is a matrix given to you. A inverse is again a matrix of the same order. तो A inverse का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज गिवन बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक. रिजल्ट्स की कैटेगरी में एक रिजल्ट और बता दें हम आपको. एज वी हैव डिस्कस अबाउट द रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, दैट वाज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A
एंड इट्स ट्रांसपोज, उसी कैटेगरी में एक और रिजल्ट की बात कर लेते हैं. दैट रिजल्ट इज A inverse and its transpose is equals to A transpose and inverse of that. A inverse and its transpose is equals to A transpose and inverse of that. कैसे आ जाता है? तो आता तो ये भी आसानी से आएगा, देखते हैं जरा. A into A inverse is a unit matrix. A into A inverse is a unit matrix. ठीक है. So if I take the transpose both sides, if I take the transpose, so it can be written as A inverse and its transpose into A transpose, that will be a unit matrix, क्योंकि unit matrix का transpose लोगे तो you are going to get the same matrix. And also it can be written as, क्योंकि A inverse is equals to I, तो एक तय बात है कि A inverse A into A is also equals to I, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है. मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है A transpose into A inverse and its transpose, that is also remains I. The reason is A into A inverse is equals to I, as well as A inverse into A is also equals to I, right? So अभी मैंने पूरे का ट्रांसपोज लिया था. अगर मान लीजिए मैं कहता हूं अगेन इफ आई राइट A इनवर्स इक्वल्स टू I, ठीक है, अगर ये रिजल्ट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा तो A के लिए करेगा तो A के ट्रांसपोज के लिए भी करेगा. मैंने यहां पे पूरे का ट्रांसपोज लिया था और यहां पर A को A ट्रांसपोज से रिप्लेस कर रहा हूं मैं. A को A ट्रांसपोज से रिप्लेस किया तो ठीक है, तब भी क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो A इंटू A इनवर्स अगर I है तो A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू I. सो ये एक सीधी सी बात है. इफ आई इक्वेट, इसको इसी रिजल्ट से इक्वेट कर दूं मैं, तो दैट कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स एंड A ट्रांसपोज ऑफ दैट. In the previous class I have discussed about the right cancellation law as well as left cancellation law, and I can definitely tell that okay, ये using the left cancellation law से मैं जरूर लिख सकता हूँ A transpose and inverse of that is nothing but A inverse and transpose of that. So ये रिजल्ट और ऐड कर लीजिएगा आप अपने रिजल्ट्स की कैटेगरी में along with the derivation. Now two questions. The first one is about इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा प्रूव करना है. एंड एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये रिजल्ट प्रूव करना है. मैं केवल आपको ये हिंट देना चाह रहा हूं कि जो छोटे छोटे से रिजल्ट्स हमने डिराइव किए हैं वो कितने हेल्पफुल हो सकते हैं. देखो, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल दैट मीन्स फर्स्ट वन की बात करें अगर हम, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे. तो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका सीधा सा मतलब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट? A ट्रांसपोज इज क्लियरली इक्वल्स टू A. सिमेट्रिक के केस में A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A. इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर कंपलसरी 0. ये सारी जानकारी आपके पास में हो, ठीक है. सो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा प्रूव करना है आपको. देखो, 2 लाइन का कार्यक्रम. जो रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके हाथ में, दैट इज A इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड इट्स इनवर्स, एंड वी हैव डिराइव्ड इन फैक्ट ईच एंड एवरी रिजल्ट. सारे रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं यहाँ पर. सो A ट्रांसपोज की वैल्यू तो A के बराबर है, नॉट इन फैक्ट वैल्यू A ट्रांसपोज इज A, तो A ट्रांसपोज तो A के बराबर है, तो A इनवर्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, A ट्रांसपोज को A से रिप्लेस किया, A इनवर्स. रिजल्ट तो तुम्हारे सामने, कहीं देखो जरा. इनवर्स ऑफ अ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वही तो लिखा है उसने, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मींस A ट्रांसपोज A के बराबर है, इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A इनवर्स है ना, और A इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग A इनवर्स. कब? ऐसा हमेशा नहीं है. ऐसा कब? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए. नहीं समझे क्या? अरे भाई कुछ नहीं, A ट्रांसपोज को A लिख दिया है, सिमेट्रिक है ना, तो A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, है ना. तो इनवर्स मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो दैट इज गोइंग टू बी A इनवर्स एंड इट्स ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू
ए इनवर्स ओनली, दैट इज द ओनली पॉइंट। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स के बराबर है तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर सेम मैट्रिक्स आता है तो उसे क्या कहोगे आप? सिमेट्रिक कहोगे। और क्या कहोगे? बात खत्म। इसका मतलब अर्थात तात्पर्य क्या है इसका? ए इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो बोलना चाह रहा है, यही तो पूछ रहा है वो। सो ए इनवर्स इज ऑल्सो अ, एक लाइन का काम है, एक लाइन का, प्रोवाइडेड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस रिजल्ट, तब हो गया एक लाइन का, अदरवाइज तो फिर ढूंढते ही रह जाएंगे वाला मामला। सो ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? इफ यू लुक फॉर द सेकेंड वन, द सेकेंड वन के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। रिजल्ट अब अपने पास जो अवेलेबल है, adjoint of A and its transpose is equals to adjoint of A transpose, derive किया हमने। so adjoint of A and its transpose is equals to adjoint of A transpose। दोस्तों A transpose तो A के बराबर है, बात खत्म। फिर से वही बात, अरे दादा एडजॉइंट ऑफ ए को बी मान लो, समझाने के लिए, समझ रहे हो? बी ट्रांसपोज अगर बी के बराबर है तो अर्थात बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वही लिखा है उसने कि एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक वन। तो हाँ ठीक है ना, एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेने पर यू आर गेटिंग द एडजॉइंट ऑफ ए ओनली, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक लाइन, प्रोवाइडेड इफ दीज रिजल्ट्स आर नोन टू यू। तो बातें तो बहुत छोटी छोटी सी होगी, लेकिन अगर पता ही नहीं है तो फिर वो तो उलझी भी रहेंगी। आप कुछ तो भी एक मैट्रिक्स लोगे और आप उसको हिट एंड ट्रायल से बनाने की कोशिश करोगे, और वो सब क्या मतलब है? रिजल्ट है डायरेक्ट याद है आपको तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जबरदस्त हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? तो बी सिमेट्रिक, बी मतलब क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी लिख दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही मिलेगा। नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। एंड देन आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटर्मिनेंट। एक बहुत सिंपल सी बात है, आपके लिए बहुत आसान कार्यक्रम रहेगा। द रीजन इज बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट। एडजॉइंट ऑफ एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 होल स्क्वायर। और आप ये भी समझ लेंगे कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस रिजल्ट, कहां से करोगे आप फिर सॉल्व? ठीक है ना? अभी आपको क्या करना है? अभी आपको केवल इतना करना है कि फॉर n इक्वल्स टू 4 इट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 4 - 1 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9। ये रिजल्ट लिख के आना आपको बिना कोई लोड लिए। द रीजन इज क्योंकि आप अभी लोड ले चुके हैं, तो बाद में लोड नहीं आएगा। आ गया एक बार लोड, मतलब अब कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। इफ यू लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड वन, A is a matrix of order 2/2, B is a matrix of order 2/2। और आपसे पूछा गया, इनफैक्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसको करवाया है, उसमें मैंने केवल बी इनवर्स ए इनवर्स पूछा था, जब मैंने आपको इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना बता रहा था। अभी मैंने आपको 2/2 के दो मैट्रिक्स दिए, ए मैट्रिक्स एज वेल एज बी मैट्रिक्स, और आपसे मैंने कहा बी इनवर्स ए इनवर्स एंड इट्स इनवर्स फाइंड आउट करो। जो यूजुअल प्रोसीजर होगी जिसके थ्रू हमने पहले सॉल्व किया था वो ये था कि ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, 2/2 मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स यू कैन फाइंड आउट यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लाइकवाइज बी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लोगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर इनवर्स लोगे। तो इन ऑल आपको क्या करना पड़ा? 3 मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना पड़े, ए इनवर्स, बी इनवर्स और फिर बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स।
लेकिन हम उतना सब कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगेन वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और हम खुश हो गए बिकॉज द रीजन इज वी आर अवेयर ऑफ ए बी इनवर्स, एंड दैट ए बी इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड इनफैक्ट वी हैव डिराइव्ड दोज रिजल्ट। सबसे बड़ी बात ये, कॉन्फिडेंस की बात ये होना चाहिए। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड बी इनवर्स ए इनवर्स एंड इट्स इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू ए बी इनवर्स और उसका इनवर्स, और हम फिर खुश हुए। द रीजन इज, हम जानते हैं ए इनवर्स एंड इट्स इनवर्स इज ए, सो ए बी इनवर्स एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। हम एक बार भी इनवर्स नहीं निकालने वाले, हम सीधे सीधे इतना ही काम करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिजल्ट छाप के आ जाएंगे। बनाने में तो और कोई बना सकता है, इसमें क्या खास बात है? बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नए मैट्रिक्स का फिर इनवर्स लो, और यहाँ पे क्या करना है आपको? केवल ए बी को मल्टीप्लाई भर करना है। काफी टाइम सेव होता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप रिजल्ट से कंफर्टेबल हैं, आइडिया है आपको। रिजल्ट आपको लगे टफ टफ करके छोड़ दिया तो फिर छूट जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? We take a previous year JEE question. In fact, in the year 2010 it was asked. It is given in the problem that k be a positive real number. K is a positive real number is given to you, and two square matrices are given to you, A matrix as well as B matrix. ये दो matrix given है, and at the same time what has been given that adjoint of A in its determinant plus adjoint of B in its determinant is equal to 10 raised to power 6. और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k इज रिक्वायर्ड। ठीक, क्या गिवन है आपको? एडजॉइंट ऑफ एन इट्स डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ बी एन इट्स डिटर्मिनेंट इज गिवन एज 10 रेज़ टू पावर 6। देखो ऑलरेडी जो हमें आइडिया है वो क्या आइडिया है कि वी आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए एन इट्स डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। बहुत ठीक ढंग से जानते हैं हम ये रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ n इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1। ठीक, सो इट विल बिकम, और ये जो मैट्रिक्स हैं दोज आर क्लियरली मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो वैल्यू ऑफ n इज 3, सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर 3-1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b रेज़ टू पावर 3-1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6। लेकिन ये तभी हो पाया, कब हो पाया? जब आपके नॉलेज में है, क्या नॉलेज में है आपके? जब आपके नॉलेज में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1, ये तभी हो पाया, अदरवाइज नहीं होगा। सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6। डायरेक्टली जेई का सवाल बता रहा हूं मैं आपको। अब एक और बात जो नोटिस करेंगे आप, ए मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो और बी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो। अगर आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है तो बी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 0 0 दिख रहे हैं। इट इज 2k minus 1, इट इज 1 minus 2k, इट इज रूट ओवर k, इट इज माइनस ऑफ रूट k, इट इज 2 रूट k, इट इज माइनस 2 रूट k। aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ aj, इट इज क्लियरली ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिखता है हमें, दिखना तो क्यों नहीं चाहिए? इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप ये भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में इफ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसी क्लास में डिस्कस किया हमने, कोई नई बात नहीं है, कोई पिछले साल की बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो एक बड़ी अच्छी बात हुई, ये रिजल्ट तो 0 ही हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 0 बिकॉज बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको मात्र इतना करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। हाँ, ये जरूर अब आपको करना होगा, दैट यू विल हैव टू सॉल्व फॉर, you will have to find out the value of determinant A. A is a symmetric matrix. Symmetric है क्या A? A is a symmetric matrix or not? It is not a symmetric. ऐसे कैसे कॉमन ले लोगे?
इधर से लोगे तो सिमेट्रिक बनेगा क्या? मुझे तो डाउट लगता है माइनस साइन कॉमन लेने पर भी नहीं बनेगा। अभी जब ये नहीं है तो फिर माइनस लेने पर कहाँ से बन जाना चाहिए? इट्स नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाय द वे होता तो भी सॉल्व तो करना ही पड़ता, उससे कोई रिजल्ट तो है नहीं अपने पास में। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सो दीज टू आर सेम, these two are not same, these two are not same, no it's not a symmetric matrix and in fact आप बना भी नहीं सकते इसको, माइनस कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। सो मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व करना पड़ेगा। करें जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मुझे वैल्यू बताना होगी आपको, बिकॉज ये यहाँ पर पुट करोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखोगे और स्क्वायर ऑफ दैट विल बी 10 to the power 6। करिए जरा, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट करिए। फास्ट एंड गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये तो करना होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन की जब बात कर रहे थे तो हमने इतनी बार डिस्कस करी कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एन इट्स डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n - 1 which is determinant of a square. Adjoint of b and its determinant is determinant of b square. B is a skew symmetric matrix, so determinant of skew symmetric matrix is always equals to 0, तो ये तो 0 हो जाता है। determinant of a square equals to 10 to the power 6, और यहाँ पर हमने determinant of a को कैलकुलेट कर लिया। If you are using रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन या डायरेक्टली आप एक्सपेंशन से लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। then we are getting value of the determinant is 8k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 to the power 6। और आप सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सॉल्व तो होना है तो तय बात है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, एंड इन फैक्ट इट इज नथिंग बट slight observation, it is nothing but 2k plus 1 whole cube is equals to 10 to the power 6, and in fact it is square of that, उसका स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर ऑफ दैट 2k plus 1 whole cube। चेक कर लें, a क्यूब 8k क्यूब प्लस b क्यूब विच इज 1 क्यूब विच इज 1 प्लस 3ab, बन रही है बात 3ab a plus b, and we are getting 2k plus 1 whole cube। बढ़िया, so it is nothing but 2k plus 1 whole cube and square of that is already there, so it will be 2k plus 1 raised to power 6 is equals to 10 to the power 6, and in fact we can say 2k plus 1 is equals to 2k plus 1 is equals to plus minus 10। ये वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। अब ये बात अलग है कि प्लस माइनस में माइनस रूल आउट हो जाएगा। द रीजन इज कि k इज अ पॉजिटिव रियल वैल्यू, साफ साफ दिया है क्वेश्चन में कि k इज अ पॉजिटिव रियल वैल्यू, तो 2k plus 1 इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। k इज अ पॉजिटिव रियल वैल्यू, so 2k plus 1 इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रियल वैल्यू अगेन। तो पॉजिटिव रियल वैल्यू और उसका पॉजिटिव का रेज़ टू पावर 6 करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो वी आर नेग्लेक्टिंग द माइनस साइन हियर, 2k plus 1 minus 10 नहीं हो पाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 2k is equals to 9 और k is equals to 9/2, और 9/2 तो k is coming as 4.5। इसमें ऑप्शंस नहीं थे, ये इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में था, तो k is equals to 4.5, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k पूछा गया था। दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k is nothing but 4 here। Now we are looking for the system of equations again. Earlier we have discussed using the Cramer's rule, using the determinants we have solved the system of equation, non-homogeneous as well as homogeneous. Board exams it is going to be a 6 mark question. So non-homogeneous system of equation, but now we are solving it through matrices, and again बहुत seriously करिएगा, directly 6 mark का question होगा वो। So non-homogeneous system of equation ले रहा हूँ मैं। non-homogeneous system of equation है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन जब मैंने क्रेमर्स रूल समझा रहा था तब आई हैव टेकन इन 2 अननोन्स एज वेल एज 3 अननोन्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट डायरेक्टली अबाउट द 3 अननोन्स। देखिएगा
a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. What we have discussed earlier in case of Cramer's rule, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में तीन रिजल्ट्स की बात की जाती है. वन इज अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज अबाउट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज अबाउट नो सॉल्यूशन. और सेम होल्ड्स हियर आल्सो. वो तो सारी बातें एज इट इज ही रहेंगी, लेकिन अब हमें सॉल्व करना है इसको यूजिंग मैट्राइसेस. कैसे करेंगे देखिएगा. इसको हम लिख सकते हैं दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. द रीजन इज ऑलरेडी एक बार आप डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें बहुत आसानी से बनने वाली हैं. देखो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, right, multiplied with x y z is equals to d1 d2 d3. हाँ जरा चेक करिएगा क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस ढंग से लिखा जा सकता है. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, 3/3 मैट्रिक्स, इट्स अ 3/1 मैट्रिक्स, रिजल्टेंट इज अ 3/1 मैट्रिक्स. चेक करिएगा प्लीज. क्यों नहीं लिख सकते? देखो ना, दिस रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z. दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं. सो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. इसको जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको हमने लिख दिया इन मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं लेट्स से दिस मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, उसको मैंने ए से डिनोट किया. द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, एक्स करना क्या है? सॉल्व करना है. सॉल्व करना मीन्स व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इसको मैंने कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से डिनोट किया, और जो d1 d2 d3 है उसको मैंने b मैट्रिक्स से डिनोट किया. ax इक्वल्स टू b. बोर्ड एग्जाम में करना रहेगा आपको एग्जैक्टली है ना. ax इक्वल्स टू b. Your target is to find out x, y, z. That means your target is to find out the matrix, this matrix, x matrix. अभी क्या किया आपने? ax equals to b. Our target is to find out x, y, z, which is matrix x. आपको क्या find out करना है? तो matrix x find out करना है. Pre multiplication by a inverse. अब कोई नई बातें नहीं रही आपके लिए. प्री मल्टीप्लीकेशन, ये जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन है, दैट्स अ मैट्रिक्स इक्वेशन ना. ax इक्वल्स टू b अगर मैं लिखता हूं तो दैट्स अ मैट्रिक्स इक्वेशन. उसको मैंने प्री मल्टीप्लाई किया विद a इनवर्स. द रीजन इज, क्यों कर रहा हूं ये भी बात समझ में आ जाती है आपको, क्योंकि a इनवर्स इंटू a विल बिकम यूनिट मैट्रिक्स. सीधी सी बात ये है. तो a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, राइट. A inverse into A is becoming unit matrix I. ठीक है, और unit matrix multiplied with the X matrix is going to be X. Right? So X is equals to adjoint of A into B divided by the determinant. क्योंकि A inverse क्या होता है? A inverse is nothing but adjoint of A divided by determinant of A. What is A inverse? A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. ठीक है ना, हमारा काम हो गया. तो X matrix is what? दुनिया नाम X matrix is nothing but x y z 3/1 का adjoint of A फाइंड आउट करके B में मल्टीप्लाई करेंगे आप.
उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। ये कहिए कि ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, कर सकते हैं। अगर आप ए मैट्रिक्स जानते हैं, जो कि आप जानते हैं, तो ए मैट्रिक्स जानते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, ऑलवेज देयर, वो तो होता ही है, फिक्स है। तो इट इज बहुत सिंपल है। तो that X matrix is nothing but adjoint of A into B divided by determinant of A, or you can say X matrix is nothing but A inverse into B। तो A मैट्रिक्स फाइंड आउट किया और उसको B से मल्टीप्लाई किया और X से इक्वेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3/1 का मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड में भी 3/1 का मैट्रिक्स है, उसमें कहां परेशानी है? इक्वेट कर दोगे तीन एलिमेंट्स, इधर x y z, इधर 2 3 1, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 1, प्रोवाइडेड यूनिक सॉल्यूशन है। तो हाउ टू डिसाइड द सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट वन, अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है। द फर्स्ट वन, इफ यू रिमेंबर इन डिटर्मिनेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर 4 डिटर्मिनेंट्स इफ यू रिमेंबर। वन इज डिटर्मिनेंट, सेकंड वन इज डिटर्मिनेंट x, थर्ड वन इज अबाउट डिटर्मिनेंट y, एंड फोर्थ वन इज अबाउट डिटर्मिनेंट z। और वैल्यू ऑफ x इज डिटर्मिनेंट x अपॉन डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ y इज डिटर्मिनेंट y अपॉन डिटर्मिनेंट, और वैल्यू ऑफ z इज डिटर्मिनेंट z अपॉन डिटर्मिनेंट। If determinant is not equals to 0, तो हम कहते हैं that's a case of unique solution. The same is here. Determinant of A is not equals to 0. Determinant of A is not equals to 0. That means that matrix is a non-singular matrix. ये मैट्रिक्स कैसा होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है ना? और नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है उस केस में बनेगी यूनिक सॉल्यूशन। We are discussing about a non-homogeneous system of equation, that will be the case of unique solution, right? The second one, if determinant of A is coming as 0, अब चेंज होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z तीनों भी 0 के बराबर होते हैं तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आता है तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। द सेम इज हैपनिंग हियर बट इन अ डिफरेंट मैनर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो बात खत्म, यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों इसको बहुत गंभीरता से इसलिए लीजिएगा, डायरेक्टली देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स एंड एटलीस्ट यू हैव टू क्लियर द बोर्ड एग्जाम्स विद गुड परसेंटेज। सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, इन दैट केस if adjoint of A into B which is there in the numerator, A matrix is there, A matrix है तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके you will be getting the adjoint matrix, और adjoint matrix multiplied with the B matrix, if you are getting as null matrix, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा, you are going to get a matrix, तो adjoint of A into B is coming as a null matrix। in that case ये दोनों ही 0 हो गए, 0 नहीं, डिटर्मिनेंट 0 है and it's a null matrix, that will be the case of infinitely many solutions। and the third one, if determinant of A is equals to 0 and adjoint of A into B is not coming as a null matrix, डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है बट एडजॉइंट ऑफ A into B is not coming as a null matrix, you are going to say that will be the condition of no solution। कर पाएंगे हम, कहाँ दिक्कत है? विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस एंड इजीली वी विल बी सॉल्विंग दैट, बट दैट इज द प्रोसीजर। और बोर्ड एग्जाम में आपको प्लीज डू रिमेंबर यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द मैट्रिक्स ओनली, इसी के थ्रू करना है। अब यार एक बात बताओ, इसमें एरर के चांसेस कहाँ हैं? एरर के चांसेस ये होते हैं, आजकल जो एग्जाम्स में आ रहा है क्वेश्चंस वो कैसे आ रहा है कि वो डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं देते हैं, लेकिन वो सिंपल से फॉर्म में लैंग्वेज लिखते हैं। उस लैंग्वेज को आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहता है। पहली बात तो ये, कभी कभी दोनों टाइप से आ जाते हैं, डिपेंड्स।
या तो डायरेक्टली आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख के दिया है और आपको उसको सॉल्व करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक लैंग्वेज में उस क्वेश्चन बना के दिया है, उसको आप पहले इक्वेशन में फ्रेम करो। फ्रेम करने के बाद में जो अप्रोच है, दैट अप्रोच रिमेन सेम। अप्रोच इज, अगर ए मैट्रिक्स इज नोन टू यू, यू कैन फाइंड आउट कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने पे एडजॉइंट आता है। ए मैट्रिक्स इज नोन टू यू, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट चेक कर लोगे। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता, तत्काल आपके दिमाग में आता ओके इट इज गोइंग टू बी केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड विद द बी मैट्रिक्स और उसको एक्स मैट्रिक्स से इक्वेट कर दोगे, यू विल बी गेटिंग एक्स बाय जेड, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यू कैन अगेन कैलकुलेट एडजॉइंट, तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कोफैक्टर इन इट्स ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशंस हैं, राइट। फर्स्ट नोट डाउन दिस, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, तो दैट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंफर्टेबल रहेंगे आप। लेकिन एरर कहां हो सकती है, अगर मान लीजिए आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी आपका गलत हो गया, जो मैं आपको समझा रहा था, आउट ऑफ द 9 एलिमेंट्स 3x3 का मैट्रिक्स होता है यूजुअली, वो एक भी एलिमेंट अगर गलत हुआ, कोफैक्टर गलत आया तो एडजॉइंट गलत होगा, एडजॉइंट गलत होगा तो इनवर्स गलत आएगा, इनवर्स गलत होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में वो भी गलत होगा। एक भी एलिमेंट अगर सिंगल एलिमेंट भी अगर रॉन्ग हुआ तो वो पूरा आपका खेल बिगाड़ देगा। इसलिए आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी, हाउ टू कैलकुलेट द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, फास्ट भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। So now using matrices we are discussing the non-homogeneous system of equation. We are discussing non-homogeneous system of equations in 3 unknowns, right? सबसे पहली बात तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिया, जरूर कर सकते हैं, ये तो बहुत सीधी सी साधारण सी बात हो गई है ना। और उसको लिखा हमने Ax इक्वल्स टू B, दैट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, दैट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x1 विच वी हैव टू डिटरमाइन। हमें करना है क्या, सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट x, y and z, दैट मींस आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट मैट्रिक्स x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, समझ लीजिए अजीत भाई, आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट मैट्रिक्स x। दिस इज इन द राइट हैंड साइड, इफ यू ऑब्जर्व दैट्स अ मैट्रिक्स d1 d2 d3, 3x3 3x1 एंड रिजल्टेंट इज अ 3x1। सो मैट्रिक्स इक्वेशन को लिखा हमने, दैट्स अ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल्स टू B। टारगेट क्या है हमारा, x फाइंड आउट करना। x फाइंड आउट करना हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, द रीजन इज A मैट्रिक्स नोन है, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर द प्री मल्टीप्लीकेशन बाय A इनवर्स। A इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि A इनवर्स इंटू A विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज द सिंपल रीजन। सो A इनवर्स इंटू A विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। अब नाउ यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ x is equals to A inverse into B. Unit matrix multiplied with x, that will be x, and that will be A inverse into B. What is A inverse? A inverse is nothing but adjoint of A divided by determinant of A, and adjoint of A into B divided by determinant of A. बात खत्म हो जाती है। करना क्या है, हमारा टारगेट होगा कि यार A इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, A इनवर्स को B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द B मैट्रिक्स, और उसको x से इक्वेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग केसेस आ जाते हैं, कैसे, the first one, if determinant is coming not equals to 0, अगर determinant of A, this is the matrix A, इसका determinant अगर not equals to 0 है, इसका मतलब है उसका inverse exist करता है, which is a non-singular matrix। determinant is not coming 0, that means non-singular, inverse exist करता है, fine। तो A is non-singular matrix। भैया अगर A non-singular matrix है, अर्थात determinant is not equals to 0, in that case जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ यूनिक रिजल्ट, यूनिक सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड करोगे डिटर्मिनेंट से, मान लीजिए 5 है वैल्यू तो 5 से डिवाइड कर लोगे और उसको x से इक्वेट कर दोगे, क्वेश्चन लेने पर और आसानी समझ में आएगा। द सेकंड केस अपीयर्स व्हेन डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, तब तो बात खत्म, यूनिक। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है तो हमें केस डिस्कस करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी व्हिच इज देयर इन द न्यूमरेटर, अगर ये मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे भैया दैट विल बी अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। और तीसरा, डिटर्मिनेंट जीरो बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट कमिंग एज अ नल मैट्रिक्स, वी आर गोइंग टू से इट्स अ
case of no solution there. And we have discussed one more term there, consistent as well as inconsistent. Solution exist करे, whether it is unique solution or infinitely many solution, वो consistent होता है. Consistent जो term होगी ना, consistent में unique solution as well as infinitely many both comes in the category of consistent. और no solutions के केस में, no solution के केस में inconsistent. Right? Now we discuss about the homogeneous system of equation first. So when we say homogeneous system of equation, जब हम homogeneous system of equation की बात करते हैं, in that case all the three constants are equals to 0. अगर मैं कहता हूँ homogeneous system of equation, so a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0 and a3x plus b3y plus c3z equals to 0. So again उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किया, तो इंस्टेड ऑफ d1 d2 d3 is going to be 0 0 and 0. मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किया तो इट इज a, इट इज x और इट इज b. तो यहाँ पे एक बात तय है कि b इज अ null matrix. All the elements are 0, so it is nothing but a null matrix. And if you remember, when we have discussed Cramer's rule, homogeneous system of equation में determinant x, determinant y, determinant z तीनों 0 होते हैं, क्योंकि एक कॉलम तो उसमें फिक्स 0 0 0 हो जाता है, तो दैट इज ऑलवेज 0. और यहाँ पे क्या हो रहा है, B मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स देयर. सो फाइन, ठीक है. अगेन वी हैव रिटन द मैट्रिक्स इक्वेशन. x फाइंड आउट करना है, सो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स बोथ साइड्स कर दिया. a इनवर्स इनटू a विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स. अगेन I into x, that will be x, that will be a inverse into b, which is adjoint of a into b divided by determinant of a. लेकिन आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करोगे, बोले सर एक बात बताओ आप, b मैट्रिक्स क्या है? b मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स. इफ इट इज अ नल मैट्रिक्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इफ इट इज अ नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ नल मैट्रिक्स. समझ रहे हो क्या? नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, प्री या पोस्ट जो भी करना है, that is always going to be a null matrix. So point is, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि adjoint of a into b is always a null matrix, है ना. और in case of determinant del x, del y, del z, determinant x, determinant y, determinant z, वो तीनों 0 थे. यहाँ पे adjoint of a into b is always going to be a null matrix. तो सारा खेल अगेन यहाँ पर भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, determinant of a के ऊपर. इफ यू रिमेंबर, वहां पर भी वैसे ही हुआ था जब हमने डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किया था, है ना. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइन, एक केस होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं कहूंगा यहां पर ये नॉट इक्वल टू 0. न्यूमरेटर में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज अ नल मैट्रिक्स. इसका सीधा सा मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, एंड द टर्म इज ट्रिवियल सॉल्यूशन. कुछ भी नया नहीं है. एंड इफ determinant of a is also coming as 0, that matrix is a singular matrix. Adjoint of a into b is always a null matrix. वो तो फिक्स है, वो तो नल मैट्रिक्स है. हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन हम कहेंगे उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. होमोजेनियस सिस्टम में हम यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी की टर्म्स यूज नहीं करते हैं. वी यूज द टर्म्स ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल. ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x0, y0, z0, और नॉन ट्रिवियल जो इनफाइनाइटली मेनी. तो ये दोनों टर्म्स होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए आएगी. दैट इज थ्रू मैट्रिसेस एंड इजीली वी कैन अंडरस्टैंड. आई विल बी लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. So system of equation is given to you, a non-homogeneous system of equation, and we have to solve this system of equation. Already we have discussed for the non-homogeneous system as well as homogeneous system.
and yes, we have to solve this question using matrix method only. तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है तो सबसे पहला काम करते हैं हम कि मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप देख लेंगे इसको. 5 2 1 3 1 2 1 3 4 एक्स वाई जेड मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को अरेंज कर दिया गया. 16 19 25 right, and we have written the equation, matrix equation, which is nothing but Ax equals to b. That's the A matrix, this is X matrix, and this is B matrix, which is nothing but the non-homogeneous system of equation. Already we are having the idea that we are going to go for the pre-multiplication by A inverse. सारी steps known है आपको, लिख सकते हैं आप, again and again you will have to write that, and you should write that. In fact बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स एंड देन ए इनवर्स इनटू ए विल बिकम अ यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स, दैट विल बी एक्स. लिख देना चाहिए. मैं डायरेक्ट लिखूं चलेगा ना. एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी एंड विच इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो मैट्रिक्स मेथड से मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो टास्क होगा मेरा और ये होगा कि आई विल हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी वेदर इट इज कमिंग नॉन जीरो और जीरो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यू शुड कैलकुलेट देयर. करिए जरा. So we are going to calculate the determinant. बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन बता सकते हैं तो बढ़िया रहेगा. और यहाँ पे अगर आप देखें तो आई होप दैट नाउ यू आर कैपेबल इनफ कि आप समझ सकते हैं इन बातों को. और ना केवल समझ सकते हैं बल्कि यू कैन अप्लाई दो R2 minus 2R3 and R1 minus 5R3. ठीक है ना. 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. So what will be getting here? 1 2 4 as it is. 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, it will be 0. 1 minus 4 minus 3 and 3 minus 8 minus 5, this will be 0. minus 4 तो ये minus 1 and 1 minus 20 minus 19. So what value you are getting for this determinant? Determinant की वैल्यू क्या आ रही है? It will be 5 and then it will be for this one 5 plus 52 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन एरर तो नहीं, देख लीजिए. What is the value of determinant you are getting here? minus 22. तो ओके, जस्ट वेरीफाई दैट कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है. What is that error here? मैंने क्या किया है? I applied the row operations R2 minus 2R3. ओके, जस्ट ऑब्जर्व. 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 1 minus 4 that will be minus 3 and 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 minus 8 that will be minus 5. रो नंबर 2 इज ओके. रो नंबर 1 को देख लें. ओके, R1 minus 5R3, 5 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, ओके इट इज 5 so it will be 10. दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है. सॉरी, ये तो ठीक है अपनी जगह. इट इज गोइंग टू बी व्हाट? minus 7 and it is 1 minus 20 minus 19. अभी ठीक है. So what is the value you are getting here? Minus of minus 22. Value of the determinant is coming as minus 22, which is not equals to 0, and that means inverse of that matrix exists. It's a non-singular matrix and it is going to be a case of unique solution. इतनी सारी बातें तो हम आसानी से बात कर लेंगे. Determinant of A is not equals to 0. That is clearly a condition of
यूनिक सॉल्यूशन A inverse exists, है ना. So we have to calculate adjoint of A into B. Matrix A is known to you, you can very well calculate the adjoint. First you will have to take the cofactor matrix और cofactor का ट्रांसपोज लेंगे, you will be getting adjoint. ठीक है, करना पड़ेगा अपने को ये. और इन द बोर्ड एग्जाम एज आई सजेस्टेड यू, बोर्ड एग्जाम में आपको एलिमेंट लेके बता देना चाहिए, है ना. को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A13, है ना. यू शुड शो इट फॉर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. 9 एलिमेंट्स आर देयर, उनके 9 को फैक्टर्स होंगे. यहाँ पे आपको मुझे बताना होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा. इफ यू हैव कैलकुलेटेड द को फैक्टर मैट्रिक्स करेक्टली, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द आइडिया many a times कि how to calculate cofactor. So now it is your responsibility and your task. Cofactor मुझे समझाना ठीक नहीं लगेगा. So please tell me the cofactor matrix. Elements of cofactor. Just a minute. Cofactor. -2, -5, 3, -10, 7 या -7? -7, okay. 8, -13, 6, -5, -1. ये मैंने नहीं कैलकुलेट किया, इट इज़ फॉर यू टू कैलकुलेट. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज़ इंडिपेंडेंटली करिए, इसमें दूसरे से लिखने की आवश्यकता नहीं है. को फैक्टर मैट्रिक्स अगर आप गलत कैलकुलेट करोगे तो आगे की कोई पोजीशन क्लियर होने की नहीं है. और बोर्ड एग्जाम में आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए लिख के बता देना चाहिए, को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A13. और अगर आपकी स्पीड सही होगी तो आप लिख पाओगे अच्छे ढंग से. तो को फैक्टर इज देयर, इज इट करेक्ट? एवरीबडी प्लीज इंडिपेंडेंटली इसको चेक करिए. यही नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या फिर अपने को? एडजॉइंट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली यू शुड राइट द एडजॉइंट. को फैक्टर लेके उसका डायरेक्टली ट्रांसपोज कर लीजिएगा. तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया. डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया. व्हाट वी हैव टू डू नाउ? दिस x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट. सो एडजॉइंट ऑफ a को b से कैलकुलेट कर लें, ये मल्टीप्लाई कर लें. एडजॉइंट ऑफ a इज देयर. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत कंफर्टेबल हैं या होना ही चाहिए, तो ये तो बता दीजिए. एडजॉइंट ऑफ a इनटू b. दिस इज एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज द b मैट्रिक्स, राइट. ऑर्डर चेंज मत करिएगा, जैसा है वैसे ही लिखिएगा. एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, है ना. ऑर्डर मत चेंज करिएगा. That's a 3/3 matrix. That's a 3/1 matrix. Resultant is clearly going to be a 3/1 matrix. Row to column multiplication you are going to do. Please do it. कर पाएंगे. Adjoint of a into b. This is adjoint of a. This is b. And row to column multiplication. That resultant is clearly going to be a matrix of order 3/1. Because what you are doing? You are doing 3/3. 3/1. Resultant is going to be of 3/1. तभी तो आप उसको x से इक्वेट कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे ना. मैट्रिक्स इक्वेशन में आपने लिखा है. तो एडजॉइंट ऑफ a into b, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन. प्लीज गिव मी द एलिमेंट्स. -22, ओके, -110. दोस्तों एडजॉइंट ऑफ a into b आ गया. और एडजॉइंट ऑफ a into b अगर आ गया, that x which is nothing but x y z, adjoint of a into b आपने कैलकुलेट किया. you'll have to divide it by the value of determinant which is -22 here ना. पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा -22 से, and you will be getting it 1, 2, 5. x equals to 1, y equals to 2 and z equals to
That is the result. And you are getting the unique solution here. अब इसमें सब कुछ ठीक है, प्रोसीजर इज इजी, आप कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप इतनी बात भी समझ गए कि अगर एक भी एलिमेंट गलत हो गया आपका, कहीं भी आपने एरर करी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में या कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने में, एक भी सिंगल एलिमेंट भी अगर कहीं एरर हुई कहीं, तो कोफैक्टर गलत है तो एडजॉइंट भी गलत होगा, एडजॉइंट गलत होगा तो एडजॉइंट ऑफ इनटू बी, वो मल्टीप्लिकेशन भी गलत आएगा और रिजल्ट भी गलत आएगा। फिर तो आपको प्रोसीजर के जो मार्क्स मिल सकते हैं वही मिलेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नेगेटिव मार्क्स के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, वैसा हम नहीं करना चाहेंगे। One more question based on the non-homogeneous system of equation, and you have to find out the values of x, y, z, and you have to decide about the solutions, whether that system of equation is consistent or not. सभी कुछ बात करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किया आपने, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हैं 2 4 6, इट इज 3 minus 6 9 10 5 and minus 20. It is x, y, z. And it is 4 1 2, right? So it is ax equals to b, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा हमने, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a inverse into a, that will be I into x, that will be x, and I am going to write here directly x is adjoint of a into b divided by determinant of a, right? So first of all we will have to calculate the value of the determinant, then only we will be in a position to decide whether it's a case of unique solution or whether it is any other case. So determinant of a calculate करेंगे आप 2 3 10 4 minus 6 5 and 6 9 minus 20, and now you can calculate the value of the determinant, and now it is your responsibility to calculate the determinant. क्या आ रहा है? Value of the determinant 2 0 बनाना अब दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। 2 0 कैसे बनाना, देखो इधर बोर्ड पे देखिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में 2 0 बना के दिखा दें, अच्छा लगेगा। टाइम अगर आपको मिलता है, और टाइम क्यों नहीं मिलता है, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी तो टाइम मिलेगा। ये 2 4 6 इज देयर, देखो हाउ टू मेक 2 zeros, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 2 0 क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ पे ये 5 है, 10 है और minus 20 क्यों नहीं 2 0 बनेंगे? बहुत आसानी से बन सकते हैं, जहां जो ऑपरेशन करना चाहे। 2 4 6, इस 2 को लेते हुए ये 4 को 0 बना सकते हैं आप, कैसे? R2 minus 2 R1, ये समझना होगा आपको। क्या कर दिया, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा हम कैसे करेंगे, ये कुछ बात नहीं हुई अब, ये बहुत ही साधारण और सामान्य किस्म की बात होगी, है ना। इट इज R2 minus 2 R1 and it is nothing but R3 minus 3 R1, खत्म, ये 2 0 बन गए, ठीक है ना। So easily you can solve that. What is the value of determinant? What you are getting here? 1200. Value of the determinant. Okay, बढ़िया। 1200. Okay. Now matrix A is given to you. पहली बात तो determinant A is non-zero, so it's a case of unique solution, है ना। A is a singular, A is a non-singular matrix. A inverse exists, and that system of equation is having a unique solution then, right? I'll have to calculate here cofactor matrix, and after taking the transpose of that cofactor you will be getting the adjoint matrix, right? And I'm going to write the adjoint matrix directly. So you are going to tell me the adjoint of A in the board exam. Again I am advising you that you should write the cofactor for individual elements, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सबके cofactors लिख के बता दीजिए। तो adjoint of A डायरेक्टली बताएंगे आप मुझे, मैट्रिक्स बता सकते हैं कि स्टिल यू आर कैलकुलेटिंग, ये इंडिविजुअल सबसे बनना चाहिए इंडिपेंडेंटली, कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज बताइए। फर्स्ट रो ऑफ एडजॉइंट, उर्वी अभी नहीं बना है? हाँ अच्छा एक सेकंड रुकिए। हर्षित, व्हाट इज द फर्स्ट रो ऑफ द एडजॉइंट मैट्रिक्स?
75 minus 150 minus 45. What he is suggesting that 75 minus 150 and minus 45. कबीर भाई, what is the second row of adjoint matrix? अभी नहीं कर पाए आप आखिर. कुणाल गुप्ता, yes. Second row of adjoint matrix 110 माइनस, पहले इंश्योर कर लें, माइनस 110. प्रतीक, आप बहुत हंस रहे हैं. चलिए आप बताइए, सेकेंड रो एज वेल एज थर्ड रो ऑफ द एडजॉइंट मैट्रिक्स. यस, माइनस 110. एक ही नहीं भैया, दोनों रो, ऑल 6 एलिमेंट्स. हाँ, एक सेकंड नहीं यार, मैं कितने सेकंड, डायरेक्ट ही तो मैंने भी निकाला यहाँ पे, डायरेक्ट ही तो है, डायरेक्ट एडजॉइंट ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे. आई एम आस्किंग यू डायरेक्टली द एडजॉइंट मैट्रिक्स. यस बोलिए, सेकंड रो प्लस 110 I am taking the adjoint, I am writing the adjoint matrix. Take some time at least. कर लीजिए. So now yes, please tell me the adjoint matrix. Yes. 75 minus 150 75. Okay. It is okay. What about the second row? अच्छा, अगर ये करना होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा बोर्ड पे, बट दैट इज ऑफ नो यूज. आपको अगर कोफैक्टर लेना नहीं आया, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, देन देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग इन द matrices and determinants and in so much of details. If you are not able to calculate cofactor and transpose, तो बेहतर होगा आप 2-3 क्लास केवल बैठ के कोफैक्टर और ट्रांसपोज ही निकालना करो. Just join some individual teacher, local level of teachers, and उससे बैठ के कोफैक्टर निकालना सीखो आप. For how many times I am going to tell you to calculate cofactor? What about the second row? Minus, एक बोल दीजिए आप. यस प्लीज. हाँ बोलो. माइनस 130. थर्ड 72 0 माइनस 24. अभी चेक कर लीजिए प्लीज सभी लोग. Is it okay? Okay, that is adjoint of A and adjoint of A into B. That's the 3 by 3 matrix without changing the order, please. 3 by 3. That's the matrix of order 3 by 1. Resultant, you are going to get a matrix of 3 by 1. Row to column multiplication you are going to do. Row to column multiplication करेंगे. 75 into 4 plus 150 into 1 plus 75 into 2. डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कहाँ परेशानी है. So it will be 75 into 4 300 plus 150 plus 150. कितना हो रहा है ये? रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन 600. Then second row and this column 110 into 4 minus 100, right, and plus 60. What is that element? 400. And the third row multiplied with this particular column, only one column is there. 72 into 4 plus 0 minus 2 into 24. What result you are getting here? 240 only. 240. Okay. That is adjoint of A into B, right? And to find out x, which is x, y, z, adjoint of A into B divided by determinant. Don't forget about this value of the determinant here. That will be equals to 1 by 1200, 600, 400 and 240. So every element present in the matrix 3 by 1 is going to be divided by 1200, and you will be getting x is equals to 1 by 2, y equals to
1 by 3 and z equals to 1 by 5, and that is the approach.